Chapter 2. An Economic Hitman is Born. It began innocently enough. I was an only child born into the middle class in 1945. Both my parents came from 3 centuries of New England Yankee stock. Their strict, moralistic, staunchly Republican attitudes reflected generations of puritanical ancestors. They were the first in their families to attend college on scholarships. My mother became a high school Latin teacher. My father joined World War II as a Navy lieutenant and was in charge of the armed guard gun crew on a highly flammable merchant marine tanker in the Atlantic. ये काफ़ी मासूमियत से शुरू हुआ। मैं इकलौता बच्चा था, 1945 में एवरेज तबके में पैदा हुआ। मेरे वालिदैन दोनों न्यू इंग्लैंड यांकी स्टॉक की 3 सदियों से आए थे। उनके सख्त इखलाकी कट्टर रिपब्लिकन रवैयों ने प्यूरिटेनिकल आबाओ-अजदाद की नस्लों की अक्कासी की। वो अपने ख़ानदानों में कॉलेज जाने वाले पहले फ़र्द थे। स्कॉलरशिप पर मेरी वालिदा एक हाई स्कूल लातीनी टीचर बन गईं। मेरे वालिद दूसरी जंग अज़ीम में बहरिया के लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुए और बहरे ओकेयानूस में एक इंतहाई आतिशगीर मर्चेंट मेरीन टैंकर पर मुसल्लह गार्डन क्रू के इंचार्ज थे। When I was born in Hanover, New Hampshire, he was recuperating from a broken hip in a Texas hospital. I did not see him until I was a year old. He took a job teaching languages at Tilton School, a boys' boarding school in rural New Hampshire. The campus stood high on a hill, proudly, some would say arrogantly, towering over the town of the same name. This exclusive institution limited its enrollment to about 50 students in each grade level, 9 through 12. The students were mostly the scions of wealthy families from Buenos Aires, Caracas, Boston, and New York. जब मैं पैदा हुआ हैनोवर न्यू हैम्पशायर में, वो टेक्सास के एक हस्पताल में टूटे हुए हिप्स से सेहतयाब हो रहे थे। मैंने 1 साल की उम्र तक उन्हें नहीं देखा था। उन्होंने न्यू हैम्पशायर के देही इलाकों में लड़कों के बोर्डिंग स्कूल टिल्टन स्कूल में लैंग्वेज टीचिंग की जॉब ली। कैंपस एक पहाड़ी पर ऊंचा करके वाक़या था। कुछ लोग तकब्बुर से कहेंगे या फ़ख्र से कहेंगे कि उसका नाम उसी शहर पर बुलंद है। इस खसूसी इदारे ने अपने एडमिशन्स को हर ग्रेड की सतह पर तकरीबन 50 तलबा तक महदूद रखा, 9 से 12 तक। तलबा ज़्यादातर ब्यूनस आयर्स, क्रॉक्स, बोस्टन और न्यूयॉर्क के अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। My family was cash starved. However, we most certainly did not see ourselves as poor. Although the school's teacher received very little salary, all our needs were provided free: food, housing, heat, water, and the workers who mowed our lawn and shoveled our snow. Beginning on my fourth birthday, I ate in the prep school dining room, shagged balls for the soccer teams my dad coached, and handed out towels in the locker room. मेरा ख़ानदान तकरीबन भूख का शिकार था, ताहम हमने यकीनी तौर पर ख़ुद को गरीब नहीं देखा। अगरचे स्कूल के असातिज़ा को बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन हमारी तमाम ज़रूरियात बग़ैर किसी मुआवज़े के पूरी की जाती थीं। खाना, रिहाइश, गर्मी, पानी और वो कारकुन जो हमारे लॉन्स काटते थे, जो घास उगती थी और हमारी बर्फ़ को बेलचे से साइड पर हटाते थे क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी। अपनी चौथी सालगिरह के आगाज़ से मैंने प्री स्कूल के खाने के कमरे में खाना खाया और जो सोसर टीम्स की जो बॉल्स आ जाती हैं, जो बाउंड्री से बाहर निकल आती हैं जब टीम प्रैक्टिस कर रही होती है, तो मैंने वो बॉल्स उनकी तरफ फेंकी, जो उस टीम की तरफ जिसको मेरे डैड कोच करते थे, और लॉकर रूम में जाकर उनको टॉवल्स भी दिए, यानी उस टीम को जाके टॉवल्स भी दिए। It is an understatement to say that the teachers and their spouses felt superior to the locals. I used to hear my parents joking about being the lords of the manor, ruling over the lowly peasants, the townies. I knew it was more than a joke. My elementary and middle school friends belonged to the peasant class. They were very poor. Their parents were farmers, lumberjacks, and mill workers. They resented the preppies on the hill, and in turn, my father and mother discouraged me from socializing with the towny girls, whom my dad sometimes refers to as sluts. ये कहना एक छोटी सी बात है कि असातिज़ा और उनके जो शरीक हयात थे वो ख़ुद को मकामी लोगों से बरतर महसूस करते थे।
मैंने अपने वालिदैन को जागीर के मालिक होने के बारे में मजाक करते हुए सुना था, जो गरीब किसानों यानी बस्तियों पर हुकूमत करते थे। मैं जानता था कि ये एक मजाक से ज़्यादा था। मेरे इब्तदाई और मिडिल स्कूल के दोस्त इस किसान तबके से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहुत गरीब थे। उनके वालिदैन किसान, लकड़हारे और मिल मज़दूर थे। उन्होंने पहाड़ी पर प्रेपिस से नाराज़गी ज़ाहिर की। प्रेपिस कहते हैं कि जो प्रेप स्कूल या ग्रेजुएट हुआ हो किसी एक्सपेंसिव स्कूल से। और उनकी नाराज़गी के नतीजे में मेरे वालिद और वालदा ने मुझे कस्बे की लड़कियों के साथ मिलने-जुलने से मना किया, जिन्हें मेरे वालिद कभी-कभार स्लट्स के नाम से पुकारते थे। I had shared school books and crayons with these girls since first grade, and over the years, I fell in love with three of them: Anne, Priscilla, and Jody. I had a hard time understanding my parents' perspective, however, I deferred to their wishes. Every year, we spent the 3 months of my dad's summer vacation at a lake cottage built by my grandfather in 1921. It was surrounded by forests, and at night, we could hear owls and mountain lions. मैं अपनी पहली क्लास से ही उन लड़कियों के साथ स्कूल की किताबें और क्रेयॉन वगैरह शेयर किया करता था, और कई सालों में मुझे उनमें से तीन से प्यार हो गया: एन, प्रिस्किला और जूडी। मुझे अपने वालिदैन के पर्सपेक्टिव को, उनके नुक्ता नज़र को समझने में मुश्किल पेश आई, तहम मैंने उनकी ख्वाहिशात को टाल दिया। हर साल हमने अपने वालिद की गर्मी की छुट्टियों के 3 महीने मेरे दादा की तरफ 1921 में बनवाई गई झील कॉटेज में गुजारते थे। ये जंगलों से घिरा हुआ था और रात को हम उल्लू और पहाड़ी शेरों की आवाज़ें सुन सकते थे। We had no neighbors. I was the only child within walking distance. In the early years, I passed the days by pretending that the trees were knights of the round table and damsels in distress named Anne, Priscilla, or Judy, depending on the year. My passion was, I had no doubts, as strong as that of Lancelot for Guinevere, and even more secretive. At 14, I received free tuition to Tilton School. With my parents prodding, I rejected everything to do with the town and never saw my old friends again. When my new classmates went home to their mansions and penthouses for vacation, I remained alone on the hill. Debutantes. I had no girlfriends. All the girls I knew were sluts. I had cast them off, and they had forgotten me. I was alone and terribly frustrated. हमारा कोई पड़ोसी नहीं था। मैं पैदल फासले तक एक इकलौता बच्चा था उस जगह पे। इब्तदाई सालों में मैंने ये दिखावा करके दिन गुजारे कि दरख्त गोल मेज़ के नाइट थे और एन, प्रेस्कला या जूडी नामी मुसीबत में मुब्तला लड़कियां। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरा जुनून उतना ही मजबूत था जितना कि लैंसलॉट के लिए ग्यूनिवेग। ये एक करैक्टर है, एक बुक का करैक्टर है लैंसलॉट और ग्यूनिवेग, और इतना ही खुफिया था। 14 साल की उम्र में मैंने टिल्टन स्कूल में मुफ्त ट्यूशन हासिल की। अपने वालिदैन की हौसला अफजाई के साथ मैंने शहर के साथ हर उस चीज़ को मुस्तरद कर दिया और अपने पुराने दोस्तों को दोबारा कभी नहीं देखा। जब मेरे नए क्लासमेट्स छुट्टियां गुजारने के लिए अपनी हवेलियों और पेंट हाउसेस में गए तो मैं पहाड़ी पर अकेला रहा। उनकी गर्लफ्रेंड्स डेब्यूटेंट थीं, यानी जो अपना फ़ैशन वाली लाइफ में ना फ़र्स्ट टाइम अपना डेब्यू कर रही हूँ, जो फ़र्स्ट टाइम उस फ़ैशन लाइफस्टाइल में एंटर हो रही हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। जिन लड़कियों को मैं जानता था वो सब स्लट्स थीं। मैंने उन्हें छोड़ दिया था और वो मुझे भूल गई थीं। मैं अकेला था और बहुत मायूस था। My parents were masters at manipulation. They assured me that I was privileged to have such an opportunity and that someday I would be grateful. I would find the perfect wife, one suited to our high moral standards. Inside, though I seethed, I craved female companionship. The idea of sex was most alluring. However, rather than rebelling, I repressed my rage and expressed my frustration by excelling. I was I was an honored student, captain of two varsity teams, editor of the school newspaper. I was determined to show up my rich classmates and to leave Tilton behind forever. मेरे वालिदैन मैनिपुलेशन में माहिर थे, यानी जो अपनी बातों से अगले बंदे को घेर ले, उसको कहते हैं कि वो मैनिपुलेशन उसने की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मुझे ऐसा मौका मिलने का एज़ाज़ हासिल होगा और मैं किसी दिन शुक्रगुज़ार हूँगा। मुझे बेहतरीन बीवी मिलेगी जो हमारे आला अखलाकी मयार के मुताबिक हो। अंदर से अगरचे मैं बहुत गुस्सा था। मुझे ख़वातीन की सोबत की ख्वाहिश थी। सेक्स का ख़याल सबसे ज़्यादा दिलकश था।
ताहम बगावत करने के बजाय मैंने अपने गुस्से को दबाया और सबकत लेकर अपनी मायूसी का इज़हार किया। मैं ऑनर्स का तालिब इल्म था, यूनिवर्सिटी की 2 टीमों का कप्तान था, स्कूल के अखबार का एडिटर था। मैंने अपने अमीर क्लासमेट्स को दिखाने और टिल्टन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का तहैया कर रखा था। During my senior year, I was awarded a full athletic scholarship to Brown. Although Ivy League schools did not officially grant athletic scholarships, this one came with a clear understanding that I would commit to playing soccer. I also was awarded a purely academic scholarship to Middlebury. I chose Brown mainly because I preferred being an athlete and because it was located in our city. My mother had graduated from Middlebury and my father had received his master's degree there. So even though Brown was in the Ivy League, they preferred Middlebury. What if you break your leg? My father asked. Better to take the academic scholarship. I buckled. अपने सीनियर साल के दौरान मुझे एक मुकम्मल ब्राउन स्कॉलरशिप से नवाजा गया। अगरचे एवी लीग स्कूलों ने सरकारी तौर पर एथलेटिक स्कॉलरशिप्स नहीं दी, लेकिन ये स्कॉलरशिप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं सॉसर ही खेलूँगा। मुझे मिडलबरी की तरफ से एक प्योर एकेडमिक स्कॉलरशिप्स भी दी गई। मैंने ब्राउन को सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने एक एथलीट बनना ज़्यादा प्रेफर किया और क्योंकि ये शहर के अंदर ही वाक़या था। मेरी वालदा ने मिडलबरी से ग्रेजुएशन की थी और मेरे वालिद ने वहीं अपनी मास्टर डिग्री हासिल की थी। अगरचे जो ब्राउन था वो ईवी लीग में ही था, लेकिन उन्होंने मिडलबरी को ही प्रेफर किया। मेरी एथलीट स्कॉलरशिप लेने पर मेरे वालिद ने पूछा कि अगर आपकी टांग टूट जाए तो क्या होगा, इसलिए तालीमी स्कॉलरशिप लेना बेहतर है। उनकी इस बात पर मैं झुक गया। Middlebury was, in my perception, merely an inflated version of Tilton, albeit in rural Vermont instead of rural New Hampshire. True, it was co education. But I was poor and most everyone else was wealthy, and I had not attended school with a female in 4 years. I lacked confidence, felt outclassed, was miserable. I pleaded with my dad to let me drop out or take a year off. I wanted to move to Boston and learn about life and women. He would not hear of it. How can I pretend to prepare other parents' kids for college if my own won't stay in one? He asked. मिडलबरी मेरे ख़्याल में टिल्टन का महज एक एग्ज़ैजरेटेड वर्जन था, यानी उसको ज़्यादा नुमाइश दी गई थी। हालांकि ये एक रूरल स्टेट थी, रूरल न्यू हैम्पशायर की बजाय। ये सच था कि ये को एजुकेशन था यहाँ पे सिस्टम, लेकिन मैं बहुत गरीब था और बाकी सारे यहाँ पर अमीर थे, और मैं इन 4 सालों में किसी लड़की के साथ स्कूल नहीं गया था। मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी, मुझे अपना आप आउट क्लास फील हुआ और मैं दुखी था। मैंने अपने वालिद से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये कॉलेज छोड़ने दें या 1 साल की छुट्टी ले दें। मैं बोस्टन जाना चाहता था और ज़िंदगी और ख़वातीन के बारे में जानना चाहता था। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं दूसरे वालिदैन को उनके बच्चों को कॉलेज जाने के लिए कैसे तैयार कर सकता हूँ अगर मेरे अपने बच्चे ही कॉलेज में नहीं रुकेंगे? उन्होंने पूछा। I have come to understand that life is composed of a series of coincidences. How we react to these, how we exercise what some refer to as free will, is everything. The choices we make within the boundaries of the twists of fate determine who we are. Two major coincidences that shaped my life occurred at Middlebury. One came in the form of an Iranian, the son of a general who was a personal advisor to the Shah. The other was a beautiful young woman named Anne, like my childhood sweetheart. मैं समझ गया हूँ कि ज़िंदगी इत्तफ़ाक़ात के सिलसिले पर मुश्तमिल है। हम उन पर कैसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं, हम किस तरह उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ लोग आज़ाद मर्ज़ी के तौर पर कहते हैं सब कुछ है। तकदीर के मोड़ की हदूद में जो इंतख़ाब हम करते हैं, वो इस बात का तयन करते हैं कि हम कौन हैं। मिडलबरी में मैं 2 बड़े इत्तफ़ाक़ात जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तश्कील दिया, उनसे मेरा सामना हुआ। एक ईरान एक ईरानी शक्ल में आया एक लड़का, एक जनरल का बेटा जो शाह का ज़ाती मशीर था। दूसरी एन नामी एक नौजवान औरत थी, बिल्कुल मेरी बचपन की प्यारी लवर की तरह। The first whom I will call Farhad had played professional soccer in Rome. He was endowed with an athletic physique,
curly black hair, soft walnut eyes, and a background and charisma that made him irresistible to women. He was my opposite in many ways. I worked hard to win his friendship, and he taught me many things that would serve me well in the years to come. I also met Anne. Although she was seriously dating a young man who attended another college, she took me under her wing. Our platonic relationship was the first truly loving one I had ever experienced. पहला शख्स जिसे मैं फरहाद कहूँगा रूम में प्रोफेशनल सॉसर खेलता था। वो एक एथलेटिक जिस्म, कर्ली ब्लैक बाल, नर्म अखरोट जैसी आंखें और एक ऐसा पस मंज़र और करिश्मा था जिसने उसे ख़वातीन के लिए नाकाबिले मज़ाहमत बना दिया था। यानी औरतें ख़ुद को उसके पास आने से रोक नहीं सकती थीं। वो कई तरीक़ों से मेरा मुखालिफ था। मैंने उसकी दोस्ती जीतने के लिए सख्त मेहनत की और उसने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाईं, जो आने वाले सालों में मेरी अच्छी तरह से खिदमत करेंगी या मेरे काम आएँगी। मैं एन से भी मिला, अगरचे वो संजीदगी से एक नौजवान से मिल रही थी, जो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन उसने मुझे अपने बाजू के नीचे ले लिया, यानी इस तरह वो मिली। ये हमारा पहला प्लेटोनिक रिलेशनशिप था, यानी पहला हकीकी प्यार था जिसका मैंने कभी तजुर्बा किया था। Farhad encouraged me to drink, party, and ignore my parents. I consciously chose to stop studying. I decided I would break my academic leg to get even with my father. My grades plummeted. I lost my scholarship. The college gave me a loan. It was my first introduction to debt. I felt dirty to me. This idea that I would be shackled to paying off the principal plus interest after I graduated. Halfway through my sophomore year, I elected to drop out. My father threatened to disown me. Farhad egged me on. I stormed into the dean's office and quit school. It was a pivotal moment in my life. Farhad and I celebrated my last night in town together at a local bar. I drunken farmer, a drunken farmer, a giant of a man, accused me of flirting with his wife, picked me up off my feet and hurled me against a wall. फरहाद ने मुझे शराब पीने, पार्टी करने और अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करने की तरगीब दी। मैंने शौरी तौर पर पढ़ाई छोड़ने का इंतखाब किया। मैंने फ़ैसला किया कि अपने वालिद से मिलने के लिए मैं अपनी तालीमी टांग तोड़ दूँगा, यानी अपना जो एक एकेडमिक रिलेशनशिप है उनके साथ उसको ख़त्म कर दूँगा। मेरे ग्रेड्स गिर गए, मैंने अपनी स्कॉलरशिप भी खो दी। कॉलेज ने मुझे लोन दिया और ये लोन से मेरा पहला तारुफ़ था। और ये मुझे बुरा महसूस हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक मखसूस लोन की अमाउंट तो मैं इनको दूँगा ही, उसके साथ-साथ मुझे सूद में भी जकड़ा जाएगा। सोफ़ोमोर के आधे साल में मेरा मुझे इंतख़ाब किया गया कि मेरा इंतख़ाब हुआ कि मैं इस कॉलेज को छोड़ दूँ, इस कोर्स को छोड़ दूँ। और मेरे वालिद ने भी मुझे धमकी दी कि वो मुझे डिसओन कर देंगे, यानी अपना और मेरा रिश्ता ख़त्म कर देंगे। फ़रहाद ने मुझे और शय दी। मैं जाके डीन के ऑफ़िस में घुस गया और स्कूल छोड़ दिया। ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम लम्हा था। फ़रहाद और मैंने अपनी आखिरी रात शहर में एक मकामी बार में एक साथ मनाई। एक शराबी किसान, एक बड़े कद का आदमी, मुझ पर अपनी बीवी के साथ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाया और मुझे पाँव से उठाकर दीवार के साथ मार दिया। Farhad stepped between us, drew a knife, and slashed the farmer open at the cheek. Then he dragged me across the room and shoved me through a window, out onto a ledge high above Otter Creek. We jumped and made our way along the river and back to our dorm. The next morning, when interrogated by the campus police, I lied and refused to admit any knowledge of the incident. Nevertheless, Farhad was expelled. We both moved to Boston and shared an apartment there. I landed a job at Hearst's Record American Sunday Advertiser newspaper as a personal assistant to the editor in chief of the Sunday Advertiser. फरहाद ने हमारे दरमियान मदाखलत की, चाकू निकाला और किसान के गाल पर उससे कट लगा दिया। फिर उसने मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाया और मुझे खिड़की से बाहर निकाल कर बाहर एक नदी के ऊपर एक किनारे पर ले गया। हमने उस नदी में छलांग लगा दी और दरिया के साथ अपना रास्ता बनाया और वापस अपने कॉलेज के कमरे में पहुंच गए। अगली सुबह जब कैंपस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मैंने झूठ बोला और वाक़े के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया।
उसके बावजूद फरहाद को निकाल दिया गया। हम दोनों बोस्टन चले गए और वहाँ एक अपार्टमेंट शेयर किया। मैंने हर्स्ट रिकॉर्ड अमेरिकन संडे एडवर्टाइज़र अखबार में संडे एडवर्टाइज़र के चीफ एडिटर के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर नौकरी हासिल की। Later that year, 1965, several of my friends at the newspaper were drafted. To avoid a similar fate, I entered Boston University's College of Business Administration. By then, Anne had broken up with her old boyfriend and she often traveled down from Middlebury to visit. I welcomed her attention. She was very funny and playful, and she helped soften the anger I felt over the Vietnam War. She had been an English major and inspired me to write short stories. She graduated in 1967 while I still had another year to complete at BU, Boston University. She adamantly refused to move in with me until we were married. Although I joked about being blackmailed, and in fact did resent what I saw as a continuation of my parents' archaic and prudish set of moral standards, I enjoyed our times together and I wanted more. We married. उसी साल 1965 के आखिर में अखबार में मेरे कई दोस्तों को ड्राफ्ट किया गया। ऐसी ही किस्मत से बचने के लिए मैं बोस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिल हुआ। तब तक एन ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ लिया था और वो अक्सर मिडलबरी से मिलने के लिए नीचे का सफ़र करती थी। मैंने उसकी तवज्जो का खैर मकदम किया। वो बहुत मज़े का ख़ेज़ और चंचल थी और उसने वियतनाम की जंग के बारे में जो गुस्सा मैंने महसूस किया था उसे कम करने में मदद की। वो एक इंग्लिश मेजर थी और मुझे मुख्तसर कहानियाँ लिखने की तरगीब देती थी। उसने 1967 में ग्रेजुएशन की, जबकि मेरे पास बोस्टन यूनिवर्सिटी में मुकम्मल होने में अभी एक साल बाकी था। उसने सख्ती से मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया जब तक कि हमारी शादी ना हो जाए। अगरचे मैंने ब्लैकमेल किए जाने के बारे में मजाक किया और दर हकीकत इस बात से नाराज़गी ज़ाहिर की जो मैंने अपने वालिदैन के कदीम और परहेज़गार इखलाकी मयारात के तसलसल के तौर पर देखी थी। मैंने एक साथ अपने वक़्त का लुत्फ़ उठाया और मैं मज़ीद चाहता था। हमने शादी की। Anne's father, a brilliant engineer, had masterminded the navigational system for an important class of missile and was rewarded with a high level position in the Department of the Navy. His best friend, a man Anne called Uncle Frank, not his real name, was employed as an executive at highest echelons of the National Security Agency, the country's least known and by most accounts largest spy organization. Shortly after our marriage, the military summoned me for my physical. I passed and therefore faced the prospect of Vietnam upon graduation. The idea of fighting in Southeast Asia tore me apart emotionally, though war has always fascinated me. एन के वालिद जो एक शानदार इंजीनियर थे, उन्होंने मिज़ाइल की एक अहम क्लास के लिए बहरी निज़ाम का मास्टरमाइंड किया था और उन्हें बहरिया के महकमे में आला ओहदे से नवाजा गया था। उनका सबसे अच्छा दोस्त एक आदमी जिसे एन अंकल फ्रैंक कहती थी, उसका असल नाम नहीं था फ्रैंक, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के आला तरीन ओहदों पर एक एग्जेक्टिव के तौर पर मुलाजिम था, जो कि मुल्क की सबसे कम जानी मानी और ज़्यादातर अकाउंट्स की तरफ से सबसे बड़ी जासूसी तंजीम थी। हमारी शादी के कुछ ही अरसे बाद फ़ौज ने मुझे तलब कर लिया और मैंने अपना फ़िज़िकल पास किया और इस वजह से ग्रेजुएशन पर वियतनाम के इम्कानात का सामना करना पड़ा। जनूब मशरक़ी एशिया में लड़ाई के ख़्याल ने मुझे जज़्बाती तौर पर उदास कर दिया, हालांकि जंग ने मुझे हमेशा मुतवज्जो किया है। I was raised on tales about my colonial ancestors, who include Thomas Paine and Ethan Allen, and I had visited all the New England and upstate New York battle sites of both the French and Indian and the Revolutionary Wars. I read every historical novel I could find. In fact, when Army Special Forces units first entered Southeast Asia, I was eager to sign up. But as the media exposed the atrocities and the inconsistencies of US policy, I experienced a change of heart. I found myself wondering whose side Payne would have taken. I was sure he would have joined our Viet Cong enemies. मेरी परवरिश मेरे colonial ancestors की कहानियों पर
हुई थी, जिनमें थॉमस पेन और एथन एलन शामिल थे। और मैंने फ्रांस और हिंदुस्तानी और इनकलाबी जंगों के तमाम न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के ऊपरी इलाकों का दौरा किया था। मैंने हर वो तारीखी नावल पढ़ा जो मुझे मिल सका। दर हकीकत जब फ़ौज के खसूसी दस्ते पहली बार जनूबी मशरक़ एशिया में दाखिल हुए, मैंने साइन अप करने के लिए बेचैन था मैं। लेकिन जैसा कि मीडिया ने मज़ालिम और अमरीकी पॉलिसी की नाहमवारियों को बेनकाब किया, तो इस बात ने मेरा इरादा तब्दील कर दिया और मैंने खुद को ये सोचते हुए पाया कि थॉमस पेन ने किसका साथ दिया होगा। मुझे यकीन था कि वो हमारे वेतकॉन्ग दुश्मनों में शामिल हो गया होगा। Uncle Frank came to my rescue. He informed me that an NSA job made one eligible for draft deferment, and he arranged for a series of meetings at his agency, including a day of grueling polygraph monitored interviews. I was told that these tests would determine whether I was suitable material for NSA recruitment and training, and if I was, would provide a profile of my strengths and weaknesses, which would be used to map out my career. Given my attitude towards the Vietnam War, I was convinced I would fail the tests. Under examination, I admitted that as a loyal American, I opposed the war, and I was surprised when the interviews did not pursue this subject. Instead, they focused on my upbringing, my attitude towards my parents, the emotion generated by the fact I grew up as a poor Puritan among so many wealthy, hedonistic preppies. अंकल फ्रैंक मेरी मदद के लिए आए। उन्होंने मुझे इत्तला दी कि एनएसए एजेंसी ने जॉब्स को जो हैं वो सबको ड्राफ्ट डेफरमेंट करने का अहल बना दिया है और उन्होंने अपनी एजेंसी में कई मीटिंग्स का एहतमाम किया है, जिसमें पॉलीग्राफ की निगरानी के लिए किए जाने वाले इंटरव्यूज़ का एक दिन भी शामिल है। मुझे बताया गया कि ये टेस्ट इस बात का तयन करेगा कि आया मैं एनएसए की भर्ती और तरबियत के लिए मौजू मवाद हूँ या नहीं, और अगर मैं हूँ तो वो मेरी खूबियों और कमज़ोरियों का प्रोफाइल फ़राहम करेंगे जो मेरे कैरियर को बनाने में इस्तेमाल किए जाएंगे। वियतनाम जंग के बारे में मेरे रवैये को देखते हुए मुझे यकीन था कि मैं टेस्ट में नाकाम हो जाऊंगा। इम्तिहान के दौरान मैंने इतराफ़ किया कि एक वफ़ादार अमरीकी की हैसियत से मैं जंग की मुखालफत करता हूँ, और जब इंटरव्यू लेने वालों ने इस मौजू को आगे नहीं बढ़ाया तो मुझे हैरत हुई। उसकी बजाय उन्होंने मेरी परवरिश, मेरे वालिदैन के साथ मेरे रवैये और उस हकीकत से पैदा होने वाले जज़्बात पर तवज्जो मरकूज़ की कि मैं बहुत सारे दौलतमंदों के दरमियान एक गरीब प्यूरिटन की तरह महसूस करता था। They also explored my frustration about the lack of women, sex, and money in my life, and the fantasy world that had evolved as a result. I was amazed by the attention they gave to my relationship with Farhad and by their interest in my willingness to lie to the campus police to protect him. At first, I assumed all these things that seemed so negative to me marked me as an NSA reject, but the interviews continued, suggesting otherwise. It was not until several years later that I realized that from an NSA viewpoint, these negatives actually are positive. Their assessment had less to do with issues of loyalty to my country than with the frustrations of my life. Anger at my parents, an obsession with women, and my ambition to live the good life gave them a hook. I was seducible. उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ख़वातीन, सेक्स और पैसे की कमी और उसके नतीजे में तैयार होने वाली ख़याली दुनिया के बारे में मेरी मायूसी का भी पता लगाया। फ़रहाद के साथ मेरे ताल्लुकात पर उनकी तवज्जो और उसकी हिफाजत के लिए कैंपस पुलिस से झूठ बोलने पर उनकी दिलचस्पी देखकर मैं हैरान रह गया। सबसे पहले मैंने ये फ़र्ज़ किया, ये तमाम चीज़ें जो मुझे नेगेटिव लग रही थी, इन्होंने मुझे एनएसए के एक रिजेक्ट के तौर पर इंडिकेट कर दिया कि मैं एक रिजेक्टेड कैंडिडेट हूँ। लेकिन इंटरव्यू कंटिन्यू रहा, जो कुछ और ही तजवीज़ कर रहा था। ये कई साल बाद मैंने महसूस किया कि एनएसए के व्यू पॉइंट से ये मनफी असल में मुस्बत थे। उनका अंदाज़ा मेरी ज़िंदगी के मायूसियों के मुकाबले में मेरे मुल्क के साथ वफ़ादारी के मसाइल से कम था। मेरे वालिदैन पर गुस्सा, औरतों के साथ जुनून और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की मेरी ख्वाहिश ने उन्हें एक हुक दिया। मैं बहकाने वाला इंसान था या बहक सकता था। My determination to excel in school and in sports, my ultimate rebellion against my father,
My ability to get along with foreigners and my willingness to lie to the police were exactly the types of attributes they sought. I also discovered later that Farhad's father worked for the US intelligence community in Iran. My friendship with Farhad was therefore a definite plus. A few weeks after the NSA testing, I was offered a job to start training in the art of spying. To being after I received my degree from Boston University several months later. However, before I had officially accepted this offer, I impulsively attended a seminar given at Boston University by a Peace Corps recruiter. A major selling point was that, like the NSA, Peace Corps job made one eligible for draft deferment. स्कूल और खेलों में सबकत हासिल करने का मेरा अज़म, अपने वालिद के ख़िलाफ़ मेरी हतमी बगावत, गैर मुल्कियों के साथ मिलने की मेरी काबिलियत और पुलिस से झूठ बोलने की मेरी ख्वाहिश बिल्कुल वही खसूसियात थीं जिनकी वो तलाश करते थे। मैंने बाद में ये भी दरियाफ़्त किया कि फ़रहाद के वालिद ईरान में अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लिए काम करते थे, इसलिए फ़रहाद के साथ मेरी दोस्ती एक यकीनी एक प्लस पॉइंट था। एनएसए के टेस्टों के चंद हफ्तों बाद मुझे जासूस बनने का तरीका सीखने के लिए नौकरी की पेशकश हुई। वो चाहते थे कि मैं चंद माह बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद तरबियत शुरू कर दूं। लेकिन उससे पहले कि मैं नौकरी के लिए हाँ कहूँ, मैं पीस कोर के किसी एक ऐसे शख्स की तरफ से बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में गया जो लोगों को शामिल करने की कोशिश करते थे, अपने कोर्स में यानी जॉब देते थे। उन्होंने जिन अच्छी चीज़ों का ज़िक्र किया उनमें से एक ये थी कि एनएसए की मुलाज़मत की तरह पीस कोर के लिए काम करना आपको फ़ौज में शामिल होने में ताख़ीर या रोक सकता है। The decision to sit in on that seminar was one of those coincidences that seemed insignificant at the time, but turned out to have life changing implications. The recruiter described several places in the world that especially needed volunteers. One of these was the Amazon rainforest, where he pointed out indigenous people lived very much as natives of North America had until the arrival of Europeans. I had always dreamed of living like the Abenaki who inhabited New Hampshire when my ancestors first settled there. I knew I had Abenaki blood in my veins, and I wanted to learn the type of forest lore they understood so well. I approached the recruiter after his talk and asked about the possibility of being assigned to the Amazon. He assured me there was a great need for volunteers in that region and that my chances would be excellent. I called Uncle Frank. उस सेमिनार में बैठने का फ़ैसला उन कोइंसिडेंसेस में से एक था जो इस वक्त गैर मामूली मालूम होते थे लेकिन ज़िंदगी बदल देने वाले थे। भर्ती करने वाले ने ख़ास तौर पर दुनिया में मुतअद्दिद मकामात की वजाहत की। उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी। उनमें से एक अमेज़न बारिश का जंगल था, जहाँ उसने निशानदेही की, जहाँ उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ लोग चाहिए। मकामी लोग बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ, जैसा कि शुमाली अमेरिका के बाकी बाशिंदे यूरोपियों की आमद तक रहते थे। मैंने हमेशा अबनाकी लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था जो न्यू हैम्पशायर में आबाद थे जब मेरे आबाओ अजदाद वहाँ पहली बार आबाद हुए थे। मैं जानता था कि मेरी रगों में अबनाकी का खून है और मैं जंगल के इस किस्म के इल्म को सीखना चाहता था जिसे वो अच्छी तरह समझते हैं। मैंने उसकी बात के बाद उस रिक्रूटर से रब्ता किया और अमेज़न को असाइन किए जाने के इम्कान के बारे में पूछा। उसने मुझे यकीन दिलाया कि इस इलाके में वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है और मेरे जो चांसेस हैं वो बेहतरीन होंगे वहाँ। मैंने अंकल फ्रैंक को फ़ोन किया। टू माई सरप्राइज, अंकल फ्रैंक encouraged me to consider the Peace Corps. He confided that after the fall of Hanoi, which in those days was deemed a certainty by men in his position, the Amazon would become a hotspot. Loaded with oil, he said. We will need good agents there, people who understand the natives. He assured me that the Peace Corps would be an excellent training ground, and he urged me to become proficient in Spanish as well as in local indigenous dialects. You might, he chuckled, end up working for a private company instead of the government. I did not understand what he meant by at that time. I was being upgraded from spy to EHM, Economic Hitman.
although I had never heard the term and would not for a few more years. हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे अंकल फ्रैंक ने मशवरा दिया कि मुझे पीस कोर में शामिल होने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि हनोई के ज़वाल के बाद, जिसके बारे में लोगों का ख़्याल था कि जल्दी हो जाएगा, अमेज़न एक अहम इलाका बन जाएगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल है। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ ऐसे हुनरमंद लोगों की ज़रूरत होगी जो मकामी लोगों को समझते होंगे। अंकल फ्रैंक ने सोचा कि पीस कोर मेरे लिए सीखने और तजर्बा हासिल करने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। उन्होंने मुझे स्पेनिश और उस इलाके में मकामी लोगों की बोली जाने वाली ज़बानें सीखने का मशवरा दिया। उन्होंने तंज़िया अंदाज़ में यहाँ तक कहा कि शायद मैं हुकूमत की बजाय किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर लूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस वक़्त उनका क्या मतलब था। बाद में मुझे पता चला कि मैं जासूस बनने से ईएचएम नामी चीज़ में अपग्रेड होने जा रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उस वक़्त वो क्या था, और मुझे उसके बारे में कुछ साल बाद ही मालूम हुआ। I had no idea that there were hundreds of men and women scattered around the world, working for consulting firms and other private companies. People who never received a penny of salary from any government agency and yet were serving the interests of empire. Nor could I have guessed that a new type with more euphemistic titles would number in the thousands by the end of the millennium, and that I would play a significant role in shaping this growing army. Anne and I applied to the Peace Corps and requested an assignment in the Amazon. When our acceptance notification arrived, my first reaction was one of extreme disappointment. The letter stated that we would be sent to Ecuador. मैं नहीं जानता था कि दुनिया भर में बहुत से मर्द और औरतें फैली हुई हैं जो कंसल्टिंग फर्मों और प्राइवेट कंपनीज के लिए काम कर रही हैं, जो किसी ताकतवर ग्रोह या सल्तनत के मफादात के लिए काम कर रही हैं। हालांकि इन्हें किसी हुकूमत से तनख्वाह नहीं मिलती थी। मैं ये भी नहीं जानता था कि इन लोगों की एक नई किस्म, जो कि एक ज़्यादा शाइस्ता मुलाजमत के उन्वानात के साथ, मतलब ज़्यादा पोलाइट वे में उनकी जॉब को नाम दिया जाता था, 1000 साल के इख्तिताम तक तादाद में हज़ारों तक पहुँच जाएगी। हैरत की बात यह है कि मैं इस बढ़ते हुए ग्रुप में अहम किरदार अदा करूँगा। मैंने और एन ने पीस कोर में दरख्वास्त देने का फ़ैसला किया और अमेज़न के इलाके में असाइन करने को कहा। ताहम जब हमें इत्तला मौसूल हुई कि हमें कबूल कर लिया गया है, तो मैं वाक़ई मायूस हुआ, क्योंकि ख़त में कहा गया था कि हमें उसकी बजाय इक्वाडोर भेजा जाएगा। ओह नो! आई थॉट आई रिक्वेस्टेड द अमेज़न, नॉट अफ्रीका। I went to an atlas and looked up Ecuador. I was dismayed when I could not find it anywhere on the African continent. In the index, though, I discovered that it is indeed located in Latin America. And I saw on the map that the river systems flowing off its Andean glaciers from the headwaters to the mighty Amazon. Further reading assured me that Ecuador's jungle were some of the world's most diverse and formidable, and that the indigenous people still lived much as they had for millennia. We accepted. अरे नहीं, मैं परेशान हो गया जब मैंने देखा कि मुझे को असाइन किया गया, जबकि मैंने अमेज़न के लिए रिक्वेस्ट की थी। एक्वाडोर को तलाश करने के लिए जल्दी से मैंने एक एटलस चेक किया, और जब मुझे अफ्रीका में ये नहीं मिल सका तो मैं मायूस हो गया। लेकिन फिर मैंने इसे इंडेक्स में पाया और ये पता चला कि एक्वाडोर लातीनी अमेरिका में है। नक्शे को देखते हुए मैंने सीखा कि एक्वाडोर के इंडियन ग्लेशियर से आने वाले दरियाई निज़ाम अमेज़न के ताकतवर दरिया में मिलते हैं। जैसा कि मैंने एक्वाडोर के बारे में मज़ीद पढ़ा, मैंने दरियाफ़्त किया कि इसके जंगलात नाकाबिल यकीन हद तक फैले हुए और चैलेंजिंग हैं, और मकामी लोग अब भी हज़ारों सालों से अपने आबाओ-अजदाद की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन तमाम मालूमात पर गौर करने के बाद मैंने और रैन ने एक्वाडोर के असाइनमेंट कबूल करने का फ़ैसला किया। Anne and I completed Peace Corps training in Southern California and headed for Ecuador in September 1968. We lived in the Amazon in the territory of the shore, whose lifestyle did indeed resemble that of pre-colonial North American natives. We also worked in the Andes with descendants of the Incas. It was a side of the world I never dreamed still existed. Until then, the only Latin Americans I had met were the wealthy prepes at the school where my father taught. I found myself sympathizing with these indigenous people who subsisted on hunting and farming. I felt an odd sort of kinship with them. Somehow, they reminded me of the townies I had left behind.
एन और मैंने जनूबी कैलिफ़ोर्निया में पीस कोर के साथ अपनी तरबियत मुकम्मल की और सितंबर 1968 में एक्वाडोर के लिए रवाना हुए। हमारी मंजिल अमेज़न का इलाका था जहां हम शुआर लोगों के दरमियान रहते थे। उनका तर्ज ज़िंदगी यूरोप के कॉलोनाइज़ से पहले के मकामी अमरीकों जैसा था। हमने एंडस में भी वक़्त गुज़ारा, अनका की औलाद के साथ काम किया। दुनिया के एक ऐसे हिस्से को देखना हैरानकुन था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब भी इस तरह मौजूद है। इस तजर्बे से पहले मैंने सिर्फ लातीनी अमरीकियों से मुलाकात की थी। वो स्कूल के अमीर तलबा थे जहाँ मेरे वालिद काम करते थे। लेकिन अब मकामी लोगों के साथ रहते हुए मैंने उनके साथ एक मजबूत ताल्लुक़ महसूस किया। वो अपने आप को बरकरार रखने के लिए शिकार और खेती बाड़ी पर इन्हिसार करते थे और कुछ अजीब तरीके से उन्होंने मुझे अपने आबाई शहर के लोगों की याद दिलाई जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था। एक्वाडोर में अपने वक़्त के दौरान मैंने उनके साथ हमदर्दी और रिश्तेदारी का गहरा एहसास महसूस किया। One day, a man in a business suit, Einar Grave, landed at the airstrip in our community. He was a vice president at JAS, T-Main Inc., an international consulting firm that kept a very low profile and that was in charge of studies to determine whether the World Bank should lend Ecuador and its neighboring countries billions of dollars to build hydroelectric dams and other infrastructure projects. Einer also was a colonel in the US Army Reserve. He started talking with me about the benefits of working for a company like Maine. When I mentioned that I had been accepted by the NSA before joining the Peace Corps and that I was considering going back to them, he informed me that he sometimes acted as an NSA liaison. He gave me a look that made me suspect that part of his assignment was to evaluate my capabilities. एक दिन आइनर ग्रेव नामी एक शख्स बिजनेस सूट पहने हमारी कम्युनिटी की फ़ज़ाई पट्टी पर पहुंचा। इन्होंने चास नामी कंपनी में नायब सदर के तौर पर काम किया। मेन जो एक मशावरती फ़र्म थी जिसे समझदार होने के लिए जाना जाता था, उनका काम ये तय करने के लिए मुताला करना था कि आया आलमी बैंक को एक्वाडोर और पड़ोसी ममालिक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैमों और दिगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए अरबों डॉलर के कर्ज़े फ्राहम करने चाहिए। कंपनी में अपने किरदार के अलावा एनर यूएस आर्मी रिज़र्व में कर्नल भी था। एनर ने मुझसे रब्ता किया और मेन जैसी कंपनी में काम करने के फ़वाइद के बारे में बात करना शुरू की। जब मैंने जिक्र किया कि पीस कोर में शामिल होने से पहले मुझे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कबूल किया था और उनके पास वापस जाने पर गौर कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि वो कभी-कभी एनएसए राब्ते के तौर पर काम करता है एनएसए से। इससे मुझे हैरत हुई कि क्या उसके काम का हिस्सा मेरी सलाहियतों और महारतों का अंदाज़ा लगाना था। I now believe that he was updating my profile and especially sizing up my abilities to survive in environments most North Americans would find hostile. We spent a couple of days together in Ecuador and afterward communicated by mail. He asked me to send him reports assessing Ecuador's economic prospects. I had a small portable typewriter, loved to write, and was quite happy to comply with this request. Over a period of about a year, I sent Ainer at least 15 long letters. In these letters, I speculated on Ecuador's economic and political future, and I appraised the growing frustration among the indigenous communities as they struggle to confront oil companies, international development agencies, and other attempts to draw them into the modern world. अब मुझे यकीन था कि आइनर ग्रेव मेरे प्रोफाइल को अपडेट कर रहा था और चैलेंजिंग माहौल में ढालने और ज़िंदा रहने की मेरी सलाहियत का जायज़ा ले रहा था, जो ज़्यादातर शुमाली अमरीकियों को मुखालिफ लग सकता है। एक्वाडोर में चंद दिन इकट्ठे गुजारने के बाद हमने मेल के ज़रिए अपना राब्ता जारी रखा। एनर ने मुझसे इससे एक्वाडोर के मुआशी इम्कानात के बारे में रिपोर्ट्स भेजने को कहा। मेरे पास एक छोटा पोर्टेबल टाइपराइटर था और मुझे लिखना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने खुशी खुशी उसकी दरख्वास्त की तामील की। तकरीबन 1 साल के दौरान मैंने एनर को कम से कम 15 लंबे ख़त भेजे। इन खतूत में मैंने एक्वाडोर के इक़्तिसादी और सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात की और क्या सराहियाँ की। मैंने मकामी कम्युनिटीज़ में बढ़ती हुई मायूसी का भी जायज़ा लिया क्योंकि उन्हें तेल की कंपनियों, बैनुल-अक़वामी तरक्याती एजेंसियों और जदीद दुनिया में ज़म करने की दीगर कोशिशों के चैलेंजों का सामना था। When my Peace Corps tour was over, Einer invited me to a job interview at main headquarters in Boston. During our private meeting, emphasized that Main's primary business was engineering, but that his biggest client, the World Bank,
recently had begun insisting that he keep economists on staff to produce the critical economic forecast used to determine the feasibility and magnitude of engineering projects. He confided that he had previously hired three highly qualified economists with impeccable credentials, two with master degrees and one with a PhD. They had failed miserably. जब मेरा पीस कोर का दौरा ख़त्म हुआ तो एनर ने मुझे नौकरी के लिए इनवाइट किया। बोस्टन में मेन हेडक्वार्टर्स में इंटरव्यू हमारी निजी मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि मेन का बुनियादी कारोबार इंजीनियरिंग था, लेकिन उसके सबसे बड़े क्लाइंट वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इस बात पर इसरार करना शुरू कर दिया है कि वो इंजीनियरिंग मंसूबों की फिजिबिलिटी और वसत का तयन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अहम इक्तसादी पेशन गोइयाँ तैयार करने के लिए माहिरीन इक्तसादियात को अमले पर रखे। उन्होंने एतराफ़ किया कि उसने इससे कबल 3 आला तालीम याफ्ता माहिर मुआशियात की खिदमात हासिल की हैं, जिनमें बेऐब इसनाद हैं। 2 मास्टर डिग्री के साथ और 1 पीएचडी के साथ वो बुरी तरह नाकाम हो चुके थे। None of them, Ainer said, can handle the idea of producing economic forecast in countries where reliable statistics are not available. He went on to tell me that, in addition, all of them had found it impossible to fulfill the terms of their contracts, which required them to travel to remote places in countries like Ecuador, Indonesia, Iran, and Egypt to interview local leaders and to provide personal assessments about the prospects for economic development in those regions. एनर ने कहा कि उनमें से कोई भी इस आइडिया को नहीं संभाल सका कि जिन कंट्रीज़ में एक रिलायबल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास इदाद-ओ-शुमार अवेलेबल नहीं है, उनके लिए वो एक इकोनॉमिक फ़ोरकास्ट को प्रोड्यूस करें कि एक मुआशी जो है ना वो दें, पेशन गोई करें कि यहाँ पे ये काम हो सकता है। ये इस काम को कोई भी उन दोनों जो हमने हायर किए थे, उन दोनों में से कोई भी अच्छे तरीके से नहीं कर सका। उसने मुझे बताया कि इसके अलावा इन सबको अपने मुआहदों की शराइत को पूरा करना नामुमकिन मालूम हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें एक्वाडोर, इंडोनेशिया, ईरान और मिस्र जैसे ममालिक के दूर दराज मकामात का सफ़र करना पड़ता था, मकामी रहनुमाओं से इंटरव्यू करना पड़ता था और इन ख़तों की इक़्तिसादी तरक्की के बारे में ज़ाती जायज़े फ़राहम करने के लिए इनका ज़ाती जायज़ा लेना पड़ता था। One had suffered a nervous breakdown in an isolated Panamanian village. He was escorted by Panamanian police to airport and put on a plane back to the United States. The letter you sent me indicate that you don't mind sticking your neck out even when hard data is not available. And given your living conditions in Ecuador, I am confident you can survive almost anywhere. He told me that he already had fired one of those economists who was prepared to do the same with the other two if I accepted the job. एनर ने इस मंसूबे के लिए जिन माहिर मुआशियात की खिदमात हासिल की थीं, उनमें से एक को पनामा के एक दूर दराज गाँव में रहते हुए नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा था। सूरत हाल इस कदर संगीन हो गई कि पनामा की पुलिस को इसे एयरपोर्ट पर ले जाकर वापस अमेरिका भेजना पड़ा। एनर ने बताया कि मैंने जो खतूत उसे भेजे थे, उससे ज़ाहिर होता है कि मैं ठोस डाटा दस्तयाब न होने पर भी ख़तरा मोल लेने और अपने ख़यालात का इज़हार करने को तैयार हूँ। उसका ये भी मानना था कि एक्वाडोर में ज़िंदगी के मुश्किल हालात के मुताबिक ढालने की मेरी सलाहियत की बुनियाद पर मैं मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ माहौल में तरक्की कर सकता हूँ। एंडर ने मज़ीद इंकशाफ किया कि इसने पहले ही एक माहिर मुआशियात को नौकरी से निकाल दिया था और वह बाकी दो के साथ भी ऐसा ही करने को तैयार था अगर मैं उसकी नौकरी की पेशकश को कबूल कर लेता जो वो तजवीज़ करने वाला था। So it was that in January 1971, I was offered a position as an economist with Mail. I had turned 26, the magical age when the draft board no longer wanted me. I consulted with Anne's family. They encouraged me to take the job, and I assumed this reflected Uncle Frank's attitude as well. I recalled him mentioning the possibility I would end up working for a private firm. Nothing was ever stated openly, but I had no doubt that my employment at Maine was a consequence of the arrangements Uncle Frank had made 3 years earlier. In addition to my experience in Ecuador and my willingness to write about that country's economic and political situation. जनवरी 1971 में जब मैं 26 साल का था, मुझे मेन के साथ माहिर मुआशियात के तौर पर काम करने की पेशकश मौसूल हुई। ये मेरे लिए एक अहम लम्हा था क्योंकि उस उम्र में मैं उस ड्राफ्ट के लिए मज़ीद अहल नहीं था, जिसका मतलब था कि मुझे फ़ौज में खिदमात अंजाम देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। मैंने एन के ख़ानदान के साथ मुलाजमत की पेशकश पर तबादला ख्याल किया और उन्होंने मुझे मौका लेने के लिए हौसला अफजाई करते हुए मदद की।
मुझे ये भी यकीन था कि मेरे चचा फ्रैंक का भी ऐसा ही ख्याल था। इस बात पर गौर करते हुए उन्होंने पहले मेरे एक निजी कंपनी में काम करने के इम्कान का ज़िक्र किया था। अगरचे किसी ने भी वाज़ह तौर पर ये नहीं कहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेन में मेरी मुलाज़मत उन इंतज़ामात का नतीजा थी जो अंकल फ्रैंक ने 3 साल पहले किए थे। उसके साथ-साथ इक्वाडोर में मेरे तजुर्बात और इस मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में लिखने की मेरी ख्वाहिश थी। ऐसा लगता है कि इन तमाम अवामिल ने मुझे मेन के साथ मुलाज़मत के इस मौके तक ले जाने में किरदार अदा किया। My head reeled for several weeks, and I had a very swollen ego. I had earned only a bachelor's degree from Boston University, which did not seem to warrant a position as an economist with such a lofty consulting company. I knew that many of my BU classmates who had been rejected by the draft and had gone on to earn MBAs and other graduate degrees would be overcome with jealousy. I visualized myself as a dashing secret agent, heading off to exotic lands, lounging beside hotel swimming pools surrounded by gorgeous bikini clad women, martini in hand. मेन की तरफ से नौकरी की पेशकश मसूल होने के बाद मैं बहुत प्राउडी सा हो गया था और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर सका। इस मुअज़्ज़ज़ कंसल्टिंग कंपनी के साथ बतौर माहिर मुआशियात के बावकार ओहदे के बारे में सोचते ही मेरी अना बढ़ गई। मैंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपनी बैचलर की डिग्री मुकम्मल की थी, जिसने मुझसे सवाल किया कि क्या मैं इस तरह के आला किरदार का मुस्तहिक हूँ, ये जानते हुए कि मेरे कुछ अहम क्लासमेट्स जिन्हें ड्राफ्ट ने मुस्तरद कर दिया था, अब एमबीए जैसी आला दर्जे की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन सोच सकता हूँ कि वो मेरे मौका पर जलन महसूस कर सकते होंगे, कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी उस पर जलन महसूस कर सकते हैं। अपने ख़्याल में मैंने अपने आप को एक दिलकश और बहादुर खुफिया एजेंट के तौर पर देखा। गैर मुल्की मकामात का सफ़र करते हुए, पुरतैश होटलों के स्विमिंग पूल्स में आराम करते हुए, बिकनी में खूबसूरत ख़वातीन से घिरे हुए, हाथ में मार्टिनी के साथ, ऐसी सनसनीखेज़ और दिलकश ज़िंदगी ख़्याल ने मुझे पुरजोश किया। ताहम मैं जानता था कि हकीकत मेरे दिन के ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। Although this was merely fantasy, I would discover that it held elements of truth. Anner had hired me as an economist, but I was soon to learn that my real job went far beyond that, and that it was in fact closer to James Bond's than I ever could have guessed. अगरचे ये महज ख़याल ही था, लेकिन मैं डिस्कवर करूँगा कि इसमें सच्चाई के अनासिर मौजूद हैं। एनर ने मुझे एक माहिर मुआशियात के तौर पर रखा था, लेकिन मुझे जल्द ही मालूम हो गया था कि मेरा असल काम इससे बहुत आगे निकल गया है, और ये कि ये हकीकत में जेम्स बॉन्ड के उससे ज़्यादा करीब था जितना मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब AFW Mentor for more videos.